ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਪੀਸੀਐਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਚਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਆਈਏਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਈਏਐਸ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਮ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟਡ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਜੀ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਮੈਮ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਨਸੈਂਸਰਡ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੋਸਟ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਡ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੁਵਾ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤੇ, ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਐਮਐਸਸੀ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ +2 ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਅਰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਜ਼ ਕਰੀਅਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि यार आईएएस आईपीएस भी कुछ होते हैं, मतलब वो हम भी बन सकते हैं? तो ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ड्रीम है ਜਿਹੜਾ उसने जगह बनाई? सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है इसके बारे में मुझे स्कूल टाइम में ज़्यादा मालूम नहीं था। आई जस्ट हर्ड कि कोई ब्यूरोक्रेसी करके कुछ चीज़ होती है, बट यूपीएससी इसका एग्ज़ाम लेती है और सिविल सर्विस में आप ऐसे जाते हो। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि मेरी फैमिली में कोई सिविल सर्विस में नहीं गया है आज से पहले। तो हुआ ये था कि जब मैंने अपनी स्कूलिंग कर ली थी इन साइंस, तो उसके बाद आई थॉट कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर मुझे एक्सपोजर हुआ था दैट दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी वन ऑप्शन फॉर माय करियर। तो एज़ वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की हमारी कंट्री में बहुत कमी रहती है और मुझ पर ये बहुत प्रेशर था कि मुझे एक जॉब लेनी थी। सो बात ये हो गई थी कि वो ये एक सपने की तरह इनिशियली उभर के नहीं आया था मेरे लिए कि वो एक जॉब की तरह आया था। बट जैसे मैंने जब इस प्रिपरेशन में एंटर हुई और उस प्रिपरेशन के दौरान मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि क्या पावर आती है आपके पास, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप चीज़ों में बदलाव ला सकते हो। क्योंकि एज अ पर्सन आई कैन सी द प्रॉब्लम्स कि यहाँ पर रोड ख़राब है या हॉस्पिटल में गंदगी है, लेकिन एज एन ऑफिसर मतलब आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम आपके पास वो एक अपॉर्चुनिटी आती है। आई विल नॉट यूज़ अ वर्ड पावर, आई विल यूज़ अ वर्ड अपॉर्चुनिटी, कि आप वहाँ पर रियल में चेंज ला सकते हो। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ द ओनली थिंग दैट दिस जॉब कैन प्रोवाइड यू। सो इसको जो मैं पहले जॉब की तरह देखती थी वो ऑटोमेटिकली एक सपने की तरह मैं उसको देखने लगी, एंड दैट्स वाई आई हैड द कंटिन्यूड डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्लीइट्स के बारे में जब हम सुनते हैं कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ जी ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੂ ਗਾਈਡਡ ਯੂ? ओके, सो माय सिस्टर, माय कज़न सिस्टर, डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ माइन, उनके हस्बैंड
वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की उन्होंने कभी तैयारी की थी, वो उस टाइम पर छोड़ चुके थे। सो जब मेरे माइंड में आया था कि मैं एक बार ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में आई थॉट कि ना लेट्स गो फॉर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन। सो व्हाट आई आस्क्ड हिम कि मैंने कहा आप मुझे गाइड कर दो, तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ किताबें बता दी थी। जो ओरिजिनल किताबें हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं था, बस उन्होंने मुझे एक पॉलिटी की एक किताब एक हाथ में पकड़ा दी थी, आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम। तो मैंने उसको डिलीजेंटली पढ़ना शुरू कर दिया जी। ठीक है, एक होता है ना क्यूरियोसिटी के साथ कि अच्छा अभी तक तो साइंस पढ़ रहे थे, अब कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट आ गया, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो वहाँ से लेकिन जब मैं सीरियस होना शुरू हुई तो मेरे पास इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बट येस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का ज़माना है आज की डेट में, सो जस्ट गो टू गूगल, सर्च करो, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी बुक लिस्ट डिटेल सब आ जाएगा। तो आपको ना किसी सीनियर को सीख करना है, ऑल राइट, और ना ही किसी बुक डिपो पर जाने की ज़रूरत है। जस्ट गो टू गूगल, ठीक है, एंड पुट योर क्वेरी। आपके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ बुक भी आ जाएगी, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस भी हैं, यू कैन गो देयर एंड सी। जी, स्टडी मटीरियल ਤਾਂ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਰਗੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਬਟ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ डिड यू डील विद हिस्ट्री? ये मेरे लिए बड़ा मतलब क्यूरियोसिटी है। सो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, सब लोग कहते हैं कि साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल से हिस्ट्री वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग फॉर मी। मुझे हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आज भी देखना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो वो अपने आप ही मेरे लिए क्यूरियोसिटी थी, पर ये एक इंडिविजुअल की बात है, जैसे आपको शायद पसंद ना हो। तो मैं आपको इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये बताऊं कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो आपको जो है ना, एक तो थोड़ा सा इसको स्टोरी के हिसाब से पढ़ना कि उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था और कैसे आज की जो सोसाइटी है वो इतिहास से ही तो बनी है, इवॉल्व हुई है। तो जस्ट लिंक इट, ठीक है। तो ऐसे समझो कि ये सोसाइटी हमारी बनी, एक स्टोरी की तरह उसको समझो, उसको एक बर्डन की तरह मत समझो। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इतिहास का आपने सवाल पूछ ही लिया है मुझसे, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी स्कूल बुक्स हैं ना, उसमें ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो NCERTs की जो किताबें हैं हिस्ट्री के लिए, वो आप अगर डेडिकेटेडली पढ़ोगे तो अपने आप आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। NCERT की बुक्स बहुत अच्छी सोर्स जी जी, क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं दे ऑल रिकमेंड NCERT बुक्स। लेकिन एक चुनौती जो मेरे ख्याल ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, NCERT ਦੀਆਂ हिस्ट्री बुक्स ना दे डोंट फॉलो क्रोनोलॉजी। मतलब कहीं वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 1915 में चले गए, फिर 1897 में आ गए, फिर 1920 में चले गए, तो ये सारियां गल्लां रहियां। तो मैं थोड़ा जिहा साडे युवा दोस्तां नूं ये कहना हुंदा है कि तुसीं रजिस्टर ते नहीं क्रोनोलॉजी बना लो इवेंट्स, कि उस वेले बंगाल च की हो रहा सी, महाराष्ट्र च की हो रहा सी, दिल्ली च की हो रहा सी, पंजाब च की हो रहा सी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ NCERT ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ NCERT ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ICSE ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, तो इस नाल फिर तुसी किद्दां मतलब इहदे नाल भी यू रिमेन कंफर्टेबल? यस, आई वाज कंफर्टेबल आफ्टर फ्यू रीडिंग्स। तो शुरू में तो बेस यू नो आपको लगता है कि आपका बेस बना हुआ है, यू नो कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, ठीक है, लिबर्टी क्या होती है, पर एक्चुअल में उनके बहुत ही डीप मीनिंग होते हैं। तो व्हाट हैपेंड कि मुझे उसका बेस सबसे पहले क्लियर करना था। तो मैंने 11th और 12th की जो सिविक्स की बुक होती है, पॉलिटी की जो किताबें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एट्सेट्रा, ये जो बुक्स थी, पहले इनको बेस बना के पहले इनको वर्ड बाय वर्ड स्टडी किया था, बिकॉज उसमें बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही प्यारी वर्ड्स का इस्तेमाल करके पूरे कंसेप्ट को समझाया हुआ है।
तो यू कांट जंप टू अ बिगर लेवल, इट इज़ अ ग्रेजुअल थिंग, है ना। जी जी तो पहले छोटी किताबों से शुरू करो। आई विल नॉट से 6th की बुक्स, आई विल से 11th 12th, जी ठीक है, क्योंकि 11th 12th में बढ़िया दिया हुआ है, तो वहाँ उतना पढ़ा। उसके बाद गो फॉर लक्ष्मीकांत और डीडी बासु। जी सो माय सीनियर्स यूज्ड टू से कि डीडी बासु इज गुड, पर मैंने पर्सनली लक्ष्मीकांत पढ़ी है। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਮ? मैं आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ जी, सारी जी, किताबें। please. तो एनसीईआरटी के लिए आई स्टडीड एनसीईआरटीज। मैंने जो एंशियंट हिस्ट्री है 6th क्लास के एनसीईआरटी से शुरू किया था, एंड आई वेंट टिल 11th 12th, ठीक है, जो उस लेवल तक। ओनली दिस, नथिंग मोर। फॉर मिडीवल हिस्ट्री अगेन आई स्टडीड एनसीईआरटी ओनली, नथिंग मोर, नो सिंगल बुक फर्दर। For your modern history, I studied only spectrum. मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी जी, क्योंकि स्पेक्ट्रम में सारा जो NCERT में है वो प्लस एक्स्ट्राज वो सब स्पेक्ट्रम में कवर्ड था। आई वॉन्ट टू से दिस थिंग कि मैंने इसमें नोट्स बना लिए थे। आप किताबों को बार बार नहीं पढ़ सकते, आपके रिवीजन में प्रॉब्लम होगी। तो आपने सिंगल रीडिंग ली, उसके बाद आप दूसरी रीडिंग लोगे, उस टाइम पे एक ना शॉर्ट नोट्स बना लो। तो स्पेक्ट्रम कुछ इतनी मोटी किताब है, छोटी सी है, मोटी सी किताब है, तो उसके मैंने कुछ 30 पेज के नोट्स बना लिए थे। जी जी तो आई वॉज एबल टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द एग्जाम, है ना। उसके बाद जैसे ज्योग्राफी है, कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड टू एनसीईआरटी ओनली। यू कैन गो एंड सी द पैटर्न ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का आप पैटर्न देखोगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी एनसीईआरटी की ही लाइंस को कोट करके आ जाते हैं एज इट इज़, ओके। तो इसलिए हम एनसीईआरटी को रिकमेंड कर रहे हैं आपको। पॉलिटी के लिए आई स्टडीड लक्ष्मीकांत। फॉर एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनामिक प्लस अ वेरी न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू बी मतलब स्टैटिक की जगह आपको जो करंट अफेयर है उसकी तरफ जाना है एनवायरनमेंट के लिए। तो उसके लिए आई यूज टू फॉलो वन करंट अफेयर की बुकलेट, विजन आईएएस। तो उसी को ही मैंने बस एक वो मान के रखा था कि आई विल स्टडी ओनली दिस, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए आई यूज टू स्टडी मृणाल आईएएस की इकोनॉमिक्स के नोट्स। जी, तो ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं। यस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू योर साइंस की किताबें, एनसीईआरटी अप टू 10th लेवल, दैट्स ऑल। ਇੱਕ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੋਲੀ ਆਈਐਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਲ ਹੈਵ ਜੁਆਇਨਡ ਥੀਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਮੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ टू गाइड अस। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ज्वाइन ਕੀਤਾ? सर ने बोला है कि सबके पेरेंट्स के माइंड में रहता है और एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है कोचिंग का। एज एन एस्पिरेंट मेरे माइंड में भी था, बट मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो आई डिडंट गो फॉर एनी कोचिंग। बट आई वुड लाइक टू से हेयर कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है नहीं। ये जो एग्ज़ाम है ना, इट इज़ नॉट अबाउट इंटेलिजेंस पर से। ये जो एग्ज़ाम है, इट इज़ मोर अबाउट कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो ना, वही सिलेबस है। इट इज़ नॉट एनी रॉकेट साइंस कि आपको कोई लगेगा कोई पढ़ाने के लिए। और अगर किसी सब्जेक्ट में लग भी रहा है तो आज की डेट में वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री वीडियोज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है। अगर लेट्स गिव द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है जिसमें वी नीड सम इंटेलेक्चुअल माइंडसेट ऑल्सो कि हाँ समझना है, कुछ लॉजिक है। तो उसमें जो है ना, आप मृणाल आईएएस इकोनॉमिक्स के वीडियोस अवेलेबल है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई कैन सर्च इट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको कोचिंग में जाके टाइम वेस्ट क्यों करना है? कोचिंग का ना एक घाटा पता है क्या है, कि जो कि उनके एक बैच में ना कम से कम 550 600 बच्चे होते हैं, ठीक है। वहाँ जाके आप मोटिवेट का तो पता नहीं, आप डीमोटिवेट ज़रूर हो जाओगे कि मतलब इतनी भीड़ में जहाँ पे हर कोई किताब लेकर चल रहा है, हर एक बंदा एस्पिरेंट है ORN में, ओल्ड राजेंद्र नगर में,
तो वेयर डू आई स्टैंड, जी ठीक है। तो इट्स बेटर कि दुनिया को देख के या उधर कौन क्या कर रहा है, ये इसका एक कोई मूल मंत्र है नहीं। थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी लाइक दिस। किसी को कोचिंग से ही सिलेक्शन हो गया होगा, किसी का। जी एट द एंड ऑफ द डे ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਮ ਇੱਕ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ, ਰੀਡਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਆਬਜ਼ਰਵਿੰਗ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੇਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਬੋਲ ਚੱਲਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦ ਇਕੋਨੋਮੀ ਆਫ ਵਰਡਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਵਾਰਡਡ। ਪਰਹੈਪਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तो ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? सी इसकी प्रैक्टिस आपको अपनी प्रिपरेशन, जैसे आप यू आर हाफ वे द प्रिपरेशन, वहीं से शुरू कर दो। मैक्सिमम लोगों में ये डर भी होता है और शायद क्लैरिटी नहीं होती है इस चीज़ की कि हम उनको मेंस की प्रिपरेशन या आंसर राइटिंग आई विल से कि कब शुरू करनी है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मेंस का एग्ज़ाम सितंबर में था हमारा, तो मैंने जो है ना 1 साल पहले अपनी आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी। जी सो मैंने लिटरली 1 साल लगातार विदाउट अ ब्रेक आंसर राइटिंग की है अपनी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं आई वॉज नॉट एट ऑल परफेक्ट। मेरे मेंटर ने मुझे पहले आंसर पर मतलब 1 नंबर भी नहीं दिया था, ठीक है, आउट ऑफ 10। वो कह रहे थे इतना बेकार आंसर लिखा है। ऑब्वियसली ना, इट वॉज माई फर्स्ट आंसर। लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते 1 साल में उन्होंने मेरे को जो है 10 में से 5-6 मार्क्स, जो यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड रहता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 नंबर इज़ मैक्सिमम, वो भी मैंने अचीव करा था। तो जैसे सर ने बोला ये वाली बात कि हमारे पास इतनी नॉलेज होती है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, लेट्स से एग्रीकल्चर पे हम इतना लिख सकते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। हाँ, और वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और उसमें स्पेसिफिकली लिखा है, जैसे इन्होंने बोला कि इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 150 वर्ड्स का वो क्वेश्चन है, यू हैव टू मेक सेंस ऑफ दैट क्वेश्चन इन दोज वेरी वर्ड्स ओनली, मतलब 150। और ये यूपीएससी मार्क्स काटती है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने ब्रीच कर दिया उसको, मतलब 10 वर्ड्स का कर दिया तो डजेंट मैटर। अगर आप 150 वर्ड का आप 200 वर्ड्स लिख के आ गए हो, वहाँ पे आपके माइनस हो जाएंगे मार्क्स। आई हैव सीन दिस थिंग हैपनिंग। सो मैं अपने वाले एक चीज़ ऐड करनी चाहूँगा कि चलो सारे कोले शायद इन्ने गाइड अच्छे नहीं होंगे कि जिन्ने मैम कोले है, फिर भी तुहानू कोई साधन नहीं लगता तो तुसी कम से कम मॉक टेस्ट एक सीरीज जिहड़ी है ना रिप्यूटेड कुछ हैगी है, तुसी कर सकते। आई विल से दिस थिंग कि जब वो बहुत बाद में, वो बाद की स्टेज होती है, ठीक है। आप मॉक शुरू में ही नहीं लगाओगे। मेरा सजेशन यहाँ पर ये रहेगा कि जब आप प्रिपरेशन में हो, जैसे घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इनसाइट्स आईएएस की हर दिन एक क्वेश्चन डलता है, मतलब एक नहीं काफ़ी सारे क्वेश्चन डलते हैं। वहाँ से एक कोई क्वेश्चन उठा लो, कुछ तो पढ़ा होगा आपने, लेट से पॉलिटी पढ़ी है, साइंस पढ़ी, कोई एक क्वेश्चन, उसको बिल्कुल मतलब ईमानदारी के साथ आपको जितना आता है ना उस पर उतना लिखो। दूसरी चीज़, गो फॉर 2 to 3 टॉपर्स ओनली, ठीक है। जैसे आई वेंट फॉर श्रुति शर्मा मैम, शी वॉज ऑल इंडिया रैंक 1 आई थिंक 3 years बैक। तो मैंने उनकी आंसर राइटिंग की कॉपी देखी थी। तो आप विजन आईएएस पे टॉपर्स की आंसर राइटिंग की कॉपीज डली हुई होती हैं, उसमें सिर्फ 2, ज़्यादा नहीं, सारे टॉपर्स की नहीं देखनी अपन ने, 2-3 बढ़िया से टॉपर्स देख लो, उनकी आंसर राइटिंग का पैटर्न देखो, उनको क्यों नंबर मिल रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या करा है वहाँ पर। हैव अ पैटर्न, एनालाइज इट, सिट 1 hour, एनालाइज इट, व्हाट दे हैव रिटन, दे हैव गिवन एग्जांपल्स, उन्होंने पॉइंटर्स में लिखा है, उन्होंने अंडरलाइन करा है। सेम क्वेश्चन मेरे को आया है, सेम क्वेश्चन उनको आया है, उनको क्यों 6 नंबर मिले, मेरे को क्यों 4 नंबर मिले। सी हर क्वेश्चन पे अगर किसी इंसान को 2 नंबर फालतू मिल रहे हैं तो 20 क्वेश्चन में वही चीज into 20 कर लो, वहीं से तो मेरिट में आप आ जाओगे, और वो बंदा नहीं आएगा। तो व्हाट यू हैव टू ऑफर, उसने मैप बनाया है आंसर राइटिंग में, उसने डायग्राम बनाया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल क्रिएटिविटी, ओके। सी दिस पैटर्न एंड व्हेन यू विल बी लाइक 6 महीने हो गए आपको ये करते करते, 7 महीने हो गए, योर प्रीलिम्स इज नाउ क्लियर, 3 महीने के बाद मेंस है, देन यू जॉइन मॉक, ओके, विजन के मॉक ज्वाइन करो। सो अखीर च मैं एक गल बिना पुछी तुहानू दोस्तों कहना चाहूँगा कि
ठीक है मैम ने ये जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया इंटरनेट का गूगल बाबा जी की सहायता ਲਈ सिर्फ अपने स्टडी मटीरियल ਲਈ और बुक्स ਲਈ एंड नो डिस्ट्रैक्शन नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग No, I will correct you. I didn't go offline from any kind of social media. I have a different opinion on this thing. सबका अपना चलता है, जैसे मैंने बताया कि सबको ऐसे रहता है कि हम तो अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट संन्यास डीएक्टिवेट लेकर कर बैठे लेंगे, हैं। है ना। मेरा ऐसा नहीं था। मेरी साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट काम करती है। मुझे ऐसा होता है कि यार मैंने डीएक्टिवेट कर दिया लेट्स से, मुझे ऐसा होता है कि यार उसने कुछ पोस्ट तो नहीं करा होगा, उसने मेरे को कोई फलाना मैसेज तो नहीं करा होगा या कुछ भी XYZ, ठीक है। सो मेरे वो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन था, वो मेरे दिमाग में पिन करता था। तो फिर मुझे ऐसा था कि ना थोड़ा बहुत- ठीक है कि है मैं ये मेरा रूटीन था। व्हेन यू आर बिजी ना एंड व्हेन यू आर डेडिकेटेड टू समथिंग, तो आपको डिस्ट्रैक्शन टच भी नहीं करेगा। जी जी तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था फोन देखने का। हाँ, पर मैं रात को फॉर माई एंटरटेनमेंट, फॉर माई स्पेस और प्लस फॉर माई नॉलेज ऑल्सो, ठीक है। आई यूज टू सी बिफोर स्लीपिंग 15 मिनट मैंने देख लिया चला के कौन सी दुनिया में क्या चल रहा है, कि मैं बिल्कुल ही एकदम डम ना हो जाऊं। चलो सक्सेस मंत्रा इज या सीक्रेट मंत्रा फॉर सक्सेस इज बैलेंस। बैलेंस ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਤੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਮਤੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੈਨੇਵਰ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਵਿਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਵੀ हैंडी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। सो यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। और मेरा ये कहना है कि हैड यू नॉट बीन इन सिविल सर्विसेज तो यू वुड हैव बीन डूइंग वंडर्स इन मीडिया। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना जी, ये किते किते मिलते हैं। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਯੁਵਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੀਸ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਿਅਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद।